देश भर में चर्चा का विषय बना यूपीएससी का लेटरल एंट्री विवाद, जिसने अब राजनीतिक में हलचल मचा दी है। यूपीएससी ने हाल ही में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 45 मध्य स्तरीय पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लेकिन अब इस फैसले के तुरंत बाद विपक्ष ने इसे लेकर कड़ी आलोचना शुरू कर दी। यूपीएससी के इस नई अधिसूचना ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। विपक्षी दलों ने इसे ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण अधिकारों पर हमला बताया है। जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है। There are two kinds of leaders. Somebody who wants to bring a constructive criticism to the job at hand, or somebody who wants to bring a destructive criticism by putting them in the forefront. मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सीधे तौर पर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के खिलाफ साजिश करार दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि पारंपरिक यूपीएससी मार्ग को दरकिनार कर आरएसएस के माध्यम से लोक सेवकों की नियुक्ति की जा रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे देश के खिलाफ साजिश करार दिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एनडीए सरकार पर भारत के संविधान को पिछले दरवाजे से बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह कदम सीधे तौर पर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे पहले भी इस पर अपना विरोध दर्ज किया था कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, यूपीएससी आप देते हैं तो पूरा एक आरक्षण की एक सुविधाएं हैं एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए, तो वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं या रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनकी बात सही थी। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है। वहीं तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलैया ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए इसे एक खूबसूरत अवसर बताया है। Rahul Gandhi ji has suddenly woken up and he has come in with one more radical proposal. 2005, Veerappa Moily ji in the second Administrative Reforms Commission, 10th volume, 325th page, talks about lateral recruitment, which they never had the courage to do it. 2018 onwards, more than 60 people have come in as joint secretary and director level, different eminent people have come in, serving for 3 years, extendable by 2 more years. After 5 years, they get out and get back into the private sector. Now, if you look at the data, 2004 to 2013, in the Congress period, the number of civil servants recruited, all India service, Group A, Group B, all services combined, 3,517. If you look at 10 years of NDA, 2014 to 23, it is 3,929. The recruitment is also more, lateral recruitment is also happening. EWS quota bought in, along with OBC, SC and ST, quota system maintained, and every single thing is happening. He has got a problem. Now, it's very, very unfortunate when you look at all the models of democratic governance across the world. Somebody did not take civil service, for example, you are somebody, very eminent as a journalist. You want to serve information broadcasting ministry as a joint director or as someone else. The government is giving you a chance at the age of 30, 35, 40, provided you have put 15 years of service in a professional field. Then you have every right to come and serve the government of India. So Rahul Gandhi wants to stop all this and say that, oh, you missed a government service selection because age is a problem. You missed that age, after that you can't take an exam. At 45 you want to serve, is giving an opportunity to them a sin. If Rahul Gandhi ji thinks it's a sin, I sadly mistaken. Now he can call himself a perpetual youth leader, but he cannot take civil service exam. Can Rahul Gandhi ji take a civil service exam at 21? He cannot take, because he has crossed his age limit. Now for a common man, if he thinks he still wants to serve the government of India, it's a beautiful opportunity, which is a working model, successfully happening, beautiful integration happening at that level. At the same time, the entry level of civil service is happening, no problem there. 150 IPS, 180 IAS, 5560 Indian Foreign Service, IRS, Customs, Central Excise, multiple services in railways, defense, DANIPS. When it is beautifully happening in the system, what is his problem? He has got a problem with Agnipath. Now he has got a problem with civil service. Now there are two kinds of leaders. Somebody who wants to bring a constructive criticism to the job at hand, or somebody who wants to bring a destructive criticism by putting them in the forefront. Now unfortunately, Rahul Gandhi ji is belonging to the second category, which is very unfortunate and uncalled for as an opposition leader.
दिलचस्प बात तो यह है कि सरकार के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर एक मत नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इस आलोचना को पाखंड बताया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री की अवधारणा यूपीए सरकार के समय विकसित की गई थी। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। एजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने इस अधिसूचना पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों के खिलाफ जा सकते हैं। पासवान की इस प्रतिक्रिया से एनडीए के भीतर असहमति की आवाज उजागर हुई है। बात को एकदम स्पष्ट कर दूं, अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत पे सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से चलता आ रहा है, हर नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाए, ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है, जो कि आज हम लोग को भी देखने को मिला है, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई जरूर करेगी। इस विवाद ने सरकार पर भी दबाव बनाया है। बड़े विवाद और विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने यूपीएससी की इस लेटरल एंट्री अधिसूचना को रद्द करने का फैसला किया है। पीएम मोदी के निर्देश पर डीओपीटी मंत्री ने यूपीएससी चेयरपर्सन को पत्र लिखकर इस विज्ञापन को तुरंत प्रभाव से रद्द करने के निर्देश दिए हैं। तो घटना इस बात को उजागर करती है कि लेटरल एंट्री जैसे बड़े बदलावों को लेकर किस प्रकार सरकार और विपक्ष आमने सामने है। हालांकि जब सरकार ने अधिसूचना को रद्द कर दिया है तो देखना होगा कि इस पर आगे अब क्या कदम उठाए जाएंगे और कैसे यह मुद्दा राजनीतिक रंग लेता है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द हब।